Hello friends, here I post related to pharmacological study and pharmacotherapeutical study which you study in diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy. Today we discuss about the pharmacotherapeutical study of anginal pectoris. This paper newly introduced in the pharmacy curriculum by PCI. So don't take much of our time. We move to our first slide. First, we have to know about anginal pectoris. So, anginal pectoris is the medical term for your chest pain. When you have to suffering from chest pain or chest discomfort, we have to name that pathological condition is called as anginal pectoris. But anginal pectoris always occur due to the coronary heart disease. It occur when the heart muscle does not get as much blood as it needs. This usually happens because of one or more of the heart arteries is narrowed or blocked. This condition is called as ischemia condition when your heart muscle is not properly filled with the blood and it will be not work as Angina usually causes uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest. You may also feel the discomfort in your neck, jaw portion, shoulder portion, back portion, and arm portion. In Angina pectoris, heartburn, lung infection, or inflammation is the most common symptoms in angina pectoris condition. Now we have to discuss about the etiology of anginal pectoris. So when we have to start the different kind of etiology of anginal pectoris, first we have to know that what is etiology. Basically when we have to dealing with etiology so हम लोग etiology को normally causes बोल सकते हैं जहां पर हम लोग different causes के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्यों हम लोग को anginal प्रॉब्लम्स होते हैं या एंजाइनल पेन्स क्यों होते हैं या हम लोग के हार्ट मसल्स क्यों डिस्कम्फर्ट होते हैं या क्यों फुलनेस हम लोग को लगता है। तो फर्स्ट इसको जानने से पहले हम लोग को एटियोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एटियोलॉजीज क्या होते हैं। तो एटियोलॉजीज वर्ड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग कॉजेस की जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एटियोलॉजी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉजेज जो कि एंजाइनल होने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके लिए हम लोग मेडिकल टर्म यूज करें दैट इज एटियोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजाइनल इज कॉज्ड बाय रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। Blood carries oxygen which the heart muscle need to survive. When the heart muscle is not getting enough oxygen, it cause condition called ischemia. we हम लोग को पता है कि इस्केमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हम लोग के हार्ट मसल या हम लोग के कोई भी ऑर्गन्स जब प्रॉपरली ब्लड ऑक्युपाइड नहीं कर पाते हैं और वहां हम लोग को पता है हम लोग की ब्लड के आरबीसी सेल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं और ड्यू टू दैट ऑक्सीजन ही हम लोग की डिफरेंट मस्कुलर फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग को जब जिस ऑर्गन्स में हम लोग को जितने ब्लड्स जरूरत है उस ऑर्गन में उतने ब्लड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। इट मींस आपके ऑक्सीजन डिमांड उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर मस्कुलर लेयर्स में डेफिशिएंट हो रहे हैं। तो आपके वो पर्टिकुलर मस्कुलर लेयर या पर्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा बिकॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यही बोला गया कि इस्चेमिया कंडीशन वही है जहां पर हम लोग के ऑक्सीजन डिमांड क्या होते हैं शॉर्टेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के हार्ट मसल्स में प्रॉपरली ब्लड ना पहुंच पाने से हम लोग के हार्ट मसल्स क्या करते हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और जब हार्ट मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं हम लोग की आर्टरीज में डिफरेंट नैरो सेक्शन आने लगते हैं, प्लेक्यू फॉर्मेशन होने लगते हैं, स्टिकीनेस होने लगते हैं और हम लोग के आर्टरीज क्या होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं जहां पर आप लोग के ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाते। ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाने के कारण आप लोग के हार्ट मसल्स में एक तरीके का पेन आता है जिस पेन को कि हम लोग एंजाइनल पेक्टोरिस बोलते हैं या एंजाइनल पेन बोलते हैं। Next, we have to discuss about the second point. The most common cause of reduced blood flow to the heart muscle is coronary artery disease. The heart arteries can become narrowed by fatty deposition called plaque. This is called the atherosclerosis. मैंने ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप लोग के हार्ट मसल्स में प्रॉपरली ब्लड ना पहुंच पाने का एक ही मेजर रीजन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप लोगों को क्यों होता है जब आप लोग के आर्टरीज नैरोड हो जाते हैं। अब ये नैरो आर्टरीज क्यों होते हैं? ये नैरो आर्टरीज हम लोग को होते हैं जब आप लोग के आर्टरीज में
फैटी डिपोजिशन होते हैं और उस फैटी डिपोजिशन को हम लोग मेडिकल टर्म्स में प्लेक्यू बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आप लोग के आर्टरीज में किसी भी तरीके का फ्लैट डिपोजिशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड जो डिपोजिशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्यू। ड्यू टू दैट डिपोजिशन हम लोग की ब्लॉकेज कंडीशन क्रिएट होते हैं, और आर्टरीज में जब आप लोग के ब्लॉकेज कंडीशन क्रिएट होते हैं, जो ब्लड आप लोग के हार्ट में प्रॉपर्ली पहुंचना चाहिए वो ब्लड आपके हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन वहां पर अराइज होते हैं। If plaque is a blood vessels rupture or a blood clot form, it can quickly block or reduce the flow through the narrowed arteries. This can suddenly and survivably decrease the blood flow to the heart muscles. हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों प्लेक्यू फॉर्मेशन होने से आप लोग के ब्लड क्यों फ्लो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल सा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग के वाटर पाइप्स होते हैं। अगर हम लोग के वाटर पाइप्स ऐसे ही हम लोग सोर्स ऑफ वाटर दे रहे हैं, एंड आप कहीं पर भी जाकर वाटर पाइप के बीच में अगर खड़े हो जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इसके कारण क्या होता है कि जितने भी पानी आ रहे हैं वो बहुत फोर्सफुली टारगेटिंग जगह पे फोर्सफुली डिजाइन होंगे, आइदर प्रोबेबली वो क्या करते हैं, फ्लो हो नहीं पाते, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो यही फेनोमेनन को अगर हम लोग हार्ट या हम लोग के हार्ट आर्टरीज में ज्वाइंट करेंगे, तो कहीं पर भी हम लोग के ब्लॉकेज जब होते हैं, आइदर आपके ब्लड बहुत ही फास्ट और बहुत ही फोर्सफुली जाकर आप लोग के टारगेट ऑर्गन्स पे मोमेंट होंगे, आइदर वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये मेजर इश्यूज है जहां पर आप लोग के टारगेट ऑर्गन्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण हम लोगों की ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होता है और हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ पेन स्टार्ट होता है। During the time of low oxygen demand, when resting, for example, the blood heart muscles may still be able to work on the reduced amount of blood flow without the triggering angina syndrome. But when the demand for oxygen goes up, such as when exercise, angina can result. So यहाँ पर बोला है कि अगर आप लोग के हार्ट भी इस तरीके का फंक्शन एबिलिटी रखता है कि आपके हार्ट में अगर प्रॉपरली ब्लड नहीं भी पहुंच पा रहा है या ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी आपके हार्ट मसल्स काम करेंगे। बट some special cases when you have to go for the exercise, when you have to go for the exciting works, then only you have to suffering from the angina pain। मतलब ये क्या है, स्पेसिफिकली किसी किसी जगह पे भी आप लोग को angina pains हो सकते हैं ड्यू टू द deficiency of your oxygen level of the particular organ like your cardiovascular system। Next, move to next slide। Now in your third slide we have to discuss different risk factors। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आप लोग के एंजाइनल पेक्टोरिस होने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एंजाइनल पेक्टोरिस करवाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जहां पर कि आपको एंजाइनल होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट हम लोग ने हाईलाइट किया है कि इंक्रीजिंग द एज। व्हेन योर एज विल बी इंक्रीज, फॉर एग्जांपल माय एज इज 20, uh, after 5 years my age is 25, then 60, 45, so like that when you have to go with the elder age, your cardiovascular system will be weakened because of the aging। okay, so हम लोग जितने भी एडल्ट होते हैं, हम जितने भी हमारे एज बढ़ते जाते हैं, हम लोग के मस्कुलर लेयर के भी एज बढ़ रहे हैं, हम लोग के सेल्स के भी एज बढ़ रहे हैं, हम लोग के सेल्स डेथ कंडीशन पे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन पे भी आप लोग को एंजाइनल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है कि आपकी एज बढ़ रहे हैं तो आपको एंजाइनल इश्यू देखने के लिए ज्यादा मिल सकते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आप लोग के फैमिलीज में ऐसे कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है कि हार्ट कंस्ट्रक्शन पे प्रॉब्लम, दैट इज वी हैव टू कंसीडर एज द जेनेटिकल इशू और द फैमिली हिस्ट्री। व्हेन योर fourth father will be suffering from the angina pain or discomfort of the heart or the cardiovascular disease, then it is most chances कि you also facing the same। यहाँ पर लिखा है हम लोग ने, टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ योर मदर फादर और एनी सिबलिंग हैव और हैड हार्ट डिजीज और ए हार्ट अटैक। सो in genetically or in the family history, if our genetical carry of any cardiovascular disease, तो हम लोग को होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग ले लिखेंगे टोबैको यूजेस।
Nowadays, that is the very common issue when we have to using the tobacco, when we have to using the different kind of alcohol, smoking, like that. So it is a very major issue nowadays. Ki we have to in the urban areas, the things or the uses of tobacco is more. So smoking, chewing tobacco, or long-term exposure to second-hand smoke can damage the lining of the arteries. हम लोग के आर्टरीज में जो लाइनिंग है, जो सेल लाइनिंग है, उसको डैमेज करने में हम लोग ये महत्वपूर्ण भूमिका असली बात ये करते हैं। जहाँ पर आप लोग बहुत ही चेन स्मोकर हैं या अल्कोहलिक हैं या आप सेकंड हैंड स्मोकर, सेकंड हैंड स्मोकर हम लोग ने यहाँ पर एक लिखा है, जहाँ पर आप स्मोक्स नहीं कर रहे हैं बट आप बहुत कम स्मोक्स कर रहे हैं या आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोकिंग हो रहा है, देन ओनली योर arteries layers और artery lining will be damaged। तो ये और एक कारण हो सकता है जहां पर आप लोग के टोबैको यूजेस की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटीज हम लोग थर्ड पॉइंट्स में लिखा है कि डायबिटीज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट counted risk factor for the angina or heart attack problems. Then we have to discuss about the high blood pressure. Over the time, high blood pressure damages artery by accelerating hardening of the arteries. यहाँ पर क्या बोला है कि over the time, for example, you have to suffering from a very long period of time of high blood pressure. For example, my age is 30. I will suffering from high blood pressure from the 30 age. So it will be reflected on 60 after I will surviving with the high blood pressure with 30 years, then my artery become hardening। और when मेरे arteries hardening होने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर्पस ऑफ टाइम जो है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ड्यू टू दैट हम मेरे जो ब्लड फ्लोस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। high cholesterol or triglyceride. This is also triglyceride. We all are know that कि triglyceride is a bad cholesterol. So low density lipoproteins है वो, जो इसके वजह से भी जो हम लोगों ने फैटी डिपोजिशन का बात ऊपर किया है, दैट इज द वन मोर इफेक्टिव कॉजेज कि हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होने से आप लोग के क्या होंगे, फैटी डिपोजिशन आप लोग के आर्टरीज में होंगे और ड्यू टू द फैटी डिपोजिशन आपके आर्टरीज क्या होंगे, हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिस्क फैक्टर। ड्यू टू दैट मोर ऑफ द angina problem is associated with the this kind of risk factor। Next, we move to the next slide. More, we discuss more risk factor like other health conditions like chronic kidney disease, peripheral artery disease, metabolic syndrome. That all are also one of the most counted risk factor for the angina pectoris. Not enough exercise. If you are not physically not so fit or physically not so active, then only you have to सफरिंग फ्रॉम द एंजाइनल पेक्टोरल। ऑब्वियसली अगर हम लोग फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है तो हम लोग को ऑब्वियसली ओबेसिटी या हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। तो इस कारण से भी आप लोग को एंजाइनल की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ओबेसिटी हम लोग ने यहाँ पर एक हाईलाइट किया है। ऑल आर नो दैट ओबेसिटी इज द वेट गेनिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पर हम लोग के रैपिड वेट गेन्स होते हैं और वो डिक्रीज नहीं होते हैं। तो ये हम लोग के ओबेसिटी कंडीशंस हैं। Emotional stress, if you are emotionally very low or you are emotionally very triggered, then your hormones produced during the stress can narrow the arteries and worsen the arterial conditions। आप लोग के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करेंगे, आप लोग की ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। Next, medications, we have to using some kind of very strong medications like the migraine tablets or the trigger the paragonizum tablet or the any sinus related tablets. It is also one of most convenient risk factor of the angina pectoris। Cold temperature exposure also responsible for angina pectoris। Let's move on to the next slide। In this slide, we have to discuss about the parthenogenesis. All are know that what is parthenogenesis, how the angina pectoris will be
occurred in our systemic circulation. It means आप लोग के systemic circulation either आपके बॉडी में किस तरीके से एंजाइनल पैक्टोरिस हो रहे हैं, मतलब कौन से पाथवेज ऐसे हैं जिसके कारण आप लोग के शरीर में एंजाइनल पेक्टोरिस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम लोग ने सारी यहाँ पे जितने भी मेडिकल टर्म्स मैंने यूज किए हैं ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग के रिस्क फैक्टर और द एटियोलॉजी सेक्शन पे। एथियोस्क्लेरोसिस व्हेन योर आर्टरीज is filled with the plaque or built with the fatty deposition and ये सारे जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्टोस्प्लीट थ्रोम्बोस ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रेजुअली ऑब्स्ट्रक्शन सडन और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकुलेशन, ये सारे क्या करेंगे हम लोग की एक ही कंडीशंस को ट्रिगर करेंगे, दैट इज द इश्केमिया कंडीशन। इश्केमिया कंडीशन क्या है? इश्केमिया कंडीशन हम लोग के हाइपोक्सिया कंडीशन को केयर करते हैं। इश्केमिया में क्या होता है, हम लोग के माइकार्डियल लेयर्स में क्या होता है, ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाते हैं। और हाइपोक्सिया प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ब्लड जहां पर पहुंच नहीं पाते वहां पर ऑक्सीजन डिमांड नहीं पहुंच पाता है। तो हाइपोक्सिया कंडीशन हम लोग के डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, मतलब आपकी जहां पर ऑक्सीजन आपको जितना चाहिए उससे कम डिमांड वो सप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। ड्यू टू दैट रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन डिमांड को वो रिड्यूस कर रहा है जिससे कि हम लोग के एंजाइनल और थ्रोम्बोलाइसिस हो रहे हैं। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब आप लोग के आर्टरीज क्या हो रहे हैं, ज्यादा डायलेशन में जा रहे हैं और आप लोग के ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। That is the most effective pathological condition of your angina pectoris. Due to that pathological issue, you have to suffering from the angina pectoris or the chest discomfort. Move to the next slide. In this slide, we have to discuss different kind of pharmacological and non-pharmacological management. I have to supply this slide in my channels. You have to note down all the pharmacological and non-pharmacological management. In pharmacological management, we have to treat with the drug, and non-pharmacological management we treat without the drugs. It means the home remedies. So pharmacological management क्या है, जहां पर हम लोग कोई भी ड्रग्स यूज कर खुद को ट्रीट करते हैं या खुद के जो पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको ठीक करते हैं, उसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जहां पर हम लोग विदाउट एनी ड्रग्स कंजप्शन हम लोग अपने पैथोलॉजिकल इश्यूज को ठीक कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किए हुए हैं, you have to note down and read. If you are having any question, you have a drop a message in my comment section. I will reply all the messages. And move to the next slide. Now we have end with this slide, and I hope you all understand what is angina pectoris. And एक चीज always हम लोग को याद रखना चाहिए कि we always know about ourselves. इट मीन्स हम लोग को अपने बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, तभी हम लोग अपने सोसाइटी को एजुकेटेड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ इश्यूज। तो मोस्टली ऐसे जो स्लाइड्स बन रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज चैनल्स पे आते रहते हैं जहां पर हम लोग अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को अवेयर होना चाहिए ये हेल्थ इश्यूज के बारे में कि हम लोग ना ही खुद और चार जन को भी हम लोग इसके बारे में ऑब्वियसली एक रिवोल्यूशन ला सकें, या ये कर सकते हैं। नाउ इट इज कि हम लोग को नॉर्मल चेस्ट पेन होते हैं तो हम लोग इतने ज्यादा we have to drink water, we have to drink some antacid, but what kind of pain it is, we don't aware with that. So when we have to dealing with that kind of slides or that kind of conversation, then only we have to aware with our own pains, कि हम लोग को किस तरीके का पेन हो रहा है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स क्या है। जब तक हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उसके लिए हम लोग को वो प्रॉब्लम से ऑब्वियसली क्योरिटी मिल नहीं सकता है। तो ये नॉट ओनली जो डिप्लोमास पढ़ रहे हैं या फार्मेसी रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, उन लोग को जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उन लोग को जानने का भी उतना ही हक है कि हम लोग के नॉर्मल जो चेस्ट पेन्स हैं वो वर्स हो सकते हैं, वो कल को एक ऐसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जिसको हम लोग के डीलिंग ना कर सकें। सो डेफिनेटली वी हैव टू अवेयर विद दिस कि व्हाट इज द एंजाइनल पेन्स, and with that we have to end this slide or end this topic.
In next session, we have to discuss with a new topic or new disease condition. तब तक आप लोग ऑब्वियसली देखते रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी अगर डाउट्स है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और द फार्मेसी टॉपिक यू हैव टू ड्रॉप ए मैसेज इन माय कमेंट सेक्शन